بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ قرآن کریم پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6۔ اور جنات اور انسان اور پرندے سب آپ کے فرما بردار تھے۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 17۔ آپ حیوانات یعنی جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 17۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف یعنی مکہ معظمہ پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جناتوں، انسانوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم الشان لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو ساتھ ہی ساتھ اس عظیم لشکر کو بھی اڑایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے اور اس عرصہ میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ دن کے بعد مکہ معظمہ سے بھی رخصت ہونے کا ارادہ فرمائے اور ایک صبح کو وہاں سے چل کر ملک یمن پہنچے۔ مکہ معظمہ سے ملک یمن کا یہ سفر 1 مہینے کا سفر ہے اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور زوال کے وقت یعنی 11 سے 12 کے بیچ میں پہنچ گئے۔ آپ یہاں بھی کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ فرمائے۔ یہاں پہنچ کر پرندے ہدہد ایک دن اوپر اڑا اور بہت ہی اوپر جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز یعنی ہریالی باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور کی اور یمنی ہدہد کی کچھ اس طریقے سے گفتگو یعنی کہ بات چیت ہوئی۔ یمنی ہدہد بولا، بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بولا، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد بولا، سلیمان کون ہے؟ تو یافور بولا، وہ جناتوں، انسانوں، شیطانوں، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا بادشاہ ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ تو یمنی ہدہد بولا، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی بھی دینا ہے اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں، یعنی پانی کی جگہ مجھے بتانا ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد بولا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں کے ملک اور اس بلقیس کی بات سن کر کے خوش ہوں گے۔ یافور نے کہا، اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ یا وہ واقعی حاضر ہی نہیں ہے؟ ضرور میں اس سے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے، یعنی کوئی ایسی خبر لائے جس سے وہ بچ سکے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 17۔ اور پھر عقاب کو حکم دیا گیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت ہی اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہتھیلی پر کوئی چیز رکھ کے دیکھتا ہے۔ اچانک اس نے ہدہد کو یمن کی طرف سے آتا ہوا دیکھا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں یعنی اس قسم میں کسی بات کی استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں وہ یہ فرمائے ہیں کہ اگر کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا
اور اس वक्त हुदहुद ने कहा, उज़्कुर वक़ूफ़का बैन यदिल्लाह, हुजूर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ़ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बताई और बताया कि मैं एक बहुत ही बड़ी मलका को देख कर आया हूँ। खुदा ने उसे हर किस्म का सामान ऐशो इशरत दे रखा है। वह सूरज की पुजारन है। वलहा अर्श अज़ीम, और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। रिवायत ये है कि ये तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था और बड़े बड़े कीमती जवाहिरात से बना था। बिल्किस ने एक मजबूत घर बनवाया था, जिस घर में दूसरा घर था, फिर उस घर के अंदर तीसरा घर था और फिर उस तीसरे घर के अंदर चौथा घर था। इसी तरह फिर उसमें पांचवा और पांचवें में छठा और छठे में सातवां घर था। इस सातवें घर में वो तख्ते बिल्किस था और 7 ही गिलाफ उस तख्त को चढ़ा रखे थे और उस तख्त के 4 अदद पाए थे। एक पाया सुर्ख याकूत का और दूसरा जर्द याकूत का और तीसरा सब्ज जमरत का और चौथा सफ़ेद मोती का था। ये तख्त 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। बिल्किस 7वें घर के अंदर रखे हुए इस तख्ते अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा था और बिल्किस तक पहुंचना एक दुश्वार बात था। हुदहुद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्किस की बात सुनाई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक ख़त ले जाओ और बिल्किस को पहुंचा आओ। चुनांचे आपने एक ख़त लिखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर कहा, अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, मेरे मामले में बड़ाई जाहिर न करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। और इस ख़त पर शाही मोहर करके हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और 7 किलों के पहरों से बेनियाज होकर रोशनदानों में से गुजरता हुआ बिल्किस के तख्त तक जा पहुंचा। बिल्किस उस वक्त सो रही थी। हुदहुद वह ख़त बिल्किस के सीने पर रख कर बाहर निकल आया। बिल्किस जब उठी तो ये ख़त पाकर घबराई और आयाने सल्तनत से मशवरा तलब किया, यानी अपने सिपाहियों से, कि क्या किया जाए। वह बोले कि आप डरती क्यों हैं? हम ज़ोर आवर वाले हैं, हम पावर वाले हैं और लड़ने में माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहता है तो लड़े, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करते, यानी हम हार नहीं मानेंगे। आइंदा जो आपकी मर्ज़ी। बिल्किस ने कहा कि जंग अच्छी चीज़ नहीं। बादशाह जब किसी शहर में अपने ज़ोर कुव्वत से दाखिल होते हैं तो वह उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफ़ा भेजूं और फिर देखूं कि सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं। अगर वो बादशाह है तो तोहफ़ा कबूल कर लेंगे और अगर नबी है तो मेरा ये तोहफ़ा कबूल न करेंगे। चुनांचे 500 गुलाम और 500 बांदिया बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरात के साथ आरास्ता सज सवार करके उन्हें ऐसे घोड़ों पर बिठाया जिनकी काठियाँ सोने की और लगामें जवाहिरात से बनी थी और 1000 सोने और चांदी की ईंटें और एक ताज जो बड़े कीमती मोतियों से मुज़य्यन था वगैरह वगैरह देकर एक ख़त अपने कासिद के साथ रवाना की। हुदहुद देखकर चल दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर सारा किस्सा सुना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नी लश्कर को हुक्म दिया, यानी जिन्नातों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक उन्हीं ईंटों की सड़क बना दी जाए और सड़क के इधर उधर सोने और चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाए और समंदर के जो खूबसूरत जानवर हैं, इसी तरह खुश्की के भी जो खूबसूरत जानवर हैं, वह सब हाजिर किए जाएं। चुनांचे आपके हुक्म की तामील फ़ौरन की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई। इस सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारें भी बन गई और खुश्की व तरी के खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए गए। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के दाएं जानिब 4000 सोने की कुर्सियां और बाएं जानिब भी 4000 सोने की कुर्सियां रखवाई और उन पर अपने मुक़र्रबीन व ख़ास को बिठा दिया और अपने जिन्नाती लश्कर और इंसानी लश्कर को दूर दूर तक सफ़ ब सफ़ यानी लाइन ब लाइन खड़ा कर दिया और वहशी जानवरों और दरिंदों और चौपायों को भी लाइन ब लाइन खड़ा कर दिया। इस किस्म का शाही दबदबा और जलाल और इस शान व शौकत की हुकूमत चश्मे फलक ने
कभी भी न देखी थी। बिल्किस का कासिद यानी बिल्किस की तरफ से आने वाला ये सोच रहा था कि मैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही कीमती तोहफा लेके आ रहा हूँ, मगर जब उसने सोने चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द चारों तरफ सोने चांदी की दीवारें देखी, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाहो इज्जत और शानो शौकत के नज़ारे देखे तो उसका दिल धक धक करने लगा और शर्म के मारे पानी पानी हो गया और सोचने लगा कि मैं ये बिल्किस का तोहफा किस मुंह से सुलेमान की खिदमत में पेश करूंगा। बहरहाल जब वो बारगाह सुलेमानी में पहुंचा तो हजरत ने फरमाया, क्या तुम लोग माले दुनिया से मेरी मदद करना चाहते हो? तुम लोग अहले मुफारखत हो, दुनिया पर फख्र करते हो, एक दूसरे के तोहफा और हदिया पर खुश होते हो। मुझे न दुनिया से खुशी होती है न इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और इतना कुछ दिया है, लिहाजा ऐ बिल्किस के कासिद पलट जा और ये अपना तोहफा ले जा और जाकर कह दो कि अगर वो मुसलमान होकर हमारे हुजूर हाजिर नहीं होती तो हम उस पर लश्कर लाएंगे जिसका मुकाबला वो न कर सकेगी और हम उसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बिल्किस का कासिद ये पैगाम लेकर वापस पलटा और बिल्किस से सारा किस्सा डिटेल तफसील में बता दिया। बिल्किस ने गौर से सुना और बोली, बेशक वह नबी है और उससे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर उसने आयान सल्तनत से मशवरा तलब करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा कर लिया। हुदहुद ने यह सारी रिपोर्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ये ऐलान फरमाया, कौन है जो बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ लेकर आए? एक जिन उठा और बोला, आपका ये बैठक ख़त्म होने से पहले मैं लेकर आऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम उससे भी ज़्यादा जल्दी मंगवाना चाहते हैं। तो फिर एक आलिम किताब उठा और बोला, अना आतीक बिही क़ब्ल अन यग़तद्द इलैका तरफ़ुका, मैं एक पल मारने से पहले लेकर आऊँगा, यानी आँख झपकने से भी पहले लेकर आऊँगा। ये कहा और पल की पल में वो तख्त भी ले आया और सुलेमान ने देखा तो तख्त सामने रखा था। फिर बिल्किस भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और हज़रत की शान व शौकत और सदाकत और नबूवत का नज़ारा करके मुसलमान हो गई। हैबातुल हैवान सफ़ा नंबर 305 जिल्द नंबर 2, रूहुल बयान सफ़ा नंबर 896 जिल्द नंबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार और बिल्किस के तख्त के मकाम का दरमियानी फासला 2 महीने का था और इसकी लंबाई चौड़ाई आप जान चुके कि 30 गज ऊंचा, 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा था। इतनी तवील मसाफत और इतने वज़नदार होने के बाद और इतने महफूज मकाम में रखे होने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक सिपाही इसे पल भर में ले आया। तो फिर जो सुलेमान तख्त तक भी पहुंच गया, मालूम हुआ कि अल्लाह वालों में ये ताकत है कि वह एक ही वक्त में मुतअद्दिद जगह हाजिर हो सकते हैं और ये ताकत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक सिपाही की है। फिर जो हज़रत सुलेमान के भी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका एक वक्त में मुतअद्दिद जगह तशरीफ़ फरमा होना क्यों मुमकिन नहीं। और तीसरी बात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस सिपाही ने 2 महीने की राह को पल भर में तय कर लिया, पल भर में चला भी गया और आ भी गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब-ए मेराज में पल भर में अर्श पर तशरीफ़ ले जाना और वापस तशरीफ़ ले आना, ये मुमकिन क्यों न हो। और चौथी बात, तख्ते सुलेमान को एक भारी एक अजीम लश्कर के साथ हवा उठा लेती थी। ये नबी का तसर्रुफ़ व इख्तियार है और जो अंबिया को अपनी तरफ बशर कहते हैं, उनमें से कोई साहब ज़रा अपनी बीबी समेत ही किसी छत से हवा पे छलांग लगा कर दिखा दे ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो सके। पाँचवीं बात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में पहुंचकर हर रोज़ 5000 ऊँट, 5000 गाय और 20,000 बकरियाँ ज़बह फरमा रहे थे। मगर एक फ़िरका आजकल ऐसा भी है जो अय्यामे हज में एक बकरी तक की कुर्बानी को भी फजूल कहता है और मुसलमानों को इस शरई अम्र से रोकता है। छठी बात, जिन्नात, इंसान, वैसी और तयूर, खुश्की और तरी के तमाम जानवर और दीगर अल्लाह के ज़बरदस्त मखलूक भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। और आज जो लोग अंबिया को अपनी तरह बशर कहते हैं, उनके घर की तरफ तो ज़रा नज़र डालो तो उनकी बीबी भी उनके ताबे नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।